course basically from the CR. CR, आप please raise your hand if you have to respond. मुझे ये बताएं कि अभी आप लोग जो है before this class, I think you were in the tutorial. Okay. I think CR has not joined yet. So we will start in a minute. In the meantime, if any other students are coming in, I will allow them to enter in the class. Through raising your hand, please let me know if you can hear me properly. Anybody, one person can do it. Okay. Okay, that's good. You can lower your hands. All right. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. So today is your first lecture of this week related to the traffic engineering 2. And before I continue with this today's topic for this week, the critical movement analysis of signalized intersections, it is very important to have some brief introduction, and I will quickly go through the contents one by one. Okay, so the topic is critical movement analysis of signalized intersections. And before I enter into the details of this topic, it is very important to understand that you must have some basic understanding of the fundamentals of traffic engineering, which obviously it is assumed that you have because this is traffic engineering 2 course. You already had traffic engineering 1 course, and fundamentals of that course were discussed in that course of this field, this topic basically. So before I move on further, I will quickly address few things and we will go one by one. I would like everybody to please make sure that you have your notes, and in today's lecture, basically these lectures are scheduled 1 hour each for this, according to the timetable for this semester. So we'll try to optimize our contents in every lecture so that we can, have complete coverage of the contents under the scope of this course. Okay, I'm seeing that some students are still, in the waiting area. I'm letting them in, but right now it is 9:05 almost. So your class timing is 9 o'clock. So again, I would emphasize your entry timing. If you can join the class 5 minutes late, it means that you can join the class 5 minutes early as well. So from next classes onward, please make sure that your class timing is what the timing is of the class. इस हवाले से मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो टाइमिंग है उसमें अगर आप खुद लेट आ रहे हैं और खुद जल्दी चले जाते हैं, बीच में मॉनिटरिंग हो रही होती है आपकी अटेंडेंस की, अटेंडेंस के हवाले से प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एंटर इनटू द क्लास एट अ प्रॉपर टाइम। अगर आपकी बैक टू बैक क्लासेस हो रही हैं और एक टीचर आपको बिल्कुल एज पे छोड़ता है, तो उससे और दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करने में चलिए कुछ टाइम हो सकता है, अदरवाइज ये टाइम है इसका जरूर ख्याल रखें, ठीक है जी। सो लेट्स एंटर इनटू द डिटेल्स। ओके, all right. So first of all, what we have here is the introduction. So in the introduction, we have, I'll go through these bullets quickly, and then I will explain what they mean and what is the significance of this topic. So first of all, understanding the critical movements and the critical volumes of a signalized intersection, it is extremely important and it is a fundamental element of any capacity analysis. Now, as traffic engineers or as students of traffic engineering and overall as students of transportation engineering,
you must be familiar with the basic terminologies and basic fundamentals of this course of traffic engineering. And as I mentioned in the introduction as well, that it is assumed that you have those fundamentals covered. So that is why some concepts which will be used for these slides and these contents will assume that you know those things. So I don't have to repeat or give you whole lectures on what the fundamentals are again. And before the midterm exams as well, the contents are quite comprehensive. So it is again assumed from my side as well that you know those contents and you have covered them and you know the fundamentals regarding those contents. Okay. So before I continue, there are some people who are in the chat group. Let me see what they are mentioning here. All right. Okay. So first thing is that critical movements and critical volumes are extremely important to be uh, covered and understood in this topic. So what basically it all means. So we'll quickly go through the introduction and then we'll enter into the procedures and the steps involved and the corresponding details. While each phase of a cycle can service several movements of lanes, some of these lanes will inevitably require more time than others to discharge their queue. Now, in this bullet, what we are saying is that we are using different terms here. For example, we are saying a term where we are using the term of phase, we are using the term cycle, and we are also using the term of lanes and the queue length or queue, exactly, exactly the term queue. So it is again very, very important that you know these terms, and it is again assumed that these terms should be known at this stage. And basically what we are saying is that for a particular intersection or any intersection, when there is a signalized intersection or when there are signals installed, then those signals are operating on the basis of the overall capacity, the geometry, etc., etc. There are a lot of things there, but the term of cycle length is very important. So when the cycle is in operation, it is based on different phases. And what does a phase mean? You again should be familiar with this term. And again, as I mentioned a few times, that this is very important that you should have covered this. So I will not go into much detail there. I'll just quickly refresh you again. But if you have some questions and you want more detail on that, I will definitely provide you. So what does phase mean? Phase means that for a particular cycle, if you are allowing a certain movement to pass through and you are giving it a green time, then that movement becomes a phase of part of that cycle, which is called a phase. So you basically provide different phases to different movements so that those movements can exit the intersection and in that cycle. ठीक हो गया. So इसमें अगर हम ये देखें कि ये अगर आप इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि several movements हो रही हैं, several lanes में से ट्रैफिक निकल रही है. तो जरूरी नहीं है कि हर लेन को सेम टाइम चाहिए हो उस इंटरसेक्शन से निकलने के लिए. So that is why the concept of this critical movement comes into play, that what it is and why it is important. If each phase is long enough to discharge the vehicles in the most demanding lane or the movement, then all of the vehicles in the movements or lanes with lower time requirements will be discharged as well. So basically what we're saying is that if there is sufficient time for those movements which are on the higher side or which the volume is relatively higher, then it is obvious that those movements which are relatively low volume vehicles or the number of vehicles are less in those lanes or the movements, corresponding movement for those movements, if the vehicles are less, then it is quite common, easy to understand that it will be sufficient for those vehicles as well. For example, if you are at an intersection
ठीक है. एंड नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक को हम देख रहे हैं. नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक में लेट्स से कि जो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है या चलें राइट टर्निंग ट्रैफिक है, उसमें आपके पास 10 गाड़ी है, और जो थ्रू ट्रैफिक है उसमें आपके पास 40 गाड़ी या 30 गाड़ी है. अब ऑब्वियसली if the demand for that 40 vehicles or 30 vehicles is met, then for those turning vehicles which are less will also be met. ठीक है. ये मतलब most likely it will be the end result of that. So that is why it is important that what is the most demanding lane of the movement in that case. So this allows the engineer to focus on one movement per phase instead of all the movements in each phase. So that is one of the benefits. Let's move to the next slide. So the movement or lane for a given phase that requires the most green time is known as the critical movement or critical lane. Okay, so if we sum up that discussion, this is how we can define the critical movement or critical lane, that it is that movement or that lane for a given phase that requires the most free time in comparison to the other phases. The critical movement or lane for each phase can be determined using flow ratios. So using the flow ratios, we can determine that what the critical movement or critical lane is for each phase. And what the flow ratio is, you should be familiar with this term as well, but again, we will go through that in this lecture. So flow ratio is the design or actual flow rate divided by the saturation flow rate. Now, if we see what the actual flow rate is, obviously that is what is observed from the field, and divided by the saturation flow rate, and we'll go into that in more details. And again, this term should be covered in the previous contents. The term saturation, or if something is saturated, that is quite easy to understand. You also have used this term in other courses as well. So when a road lanes in the form of lanes or intersections, when we're talking about that in the form of road infrastructure, then the saturation flow rate would indicate that condition when the traffic is so much that it is going into the maximum, it is completely saturated. The movement or lane with the highest flow ratio is the critical movement or critical lane. So the question arises that, okay, fine, we are talking about the critical movement in terms of flow ratio, then should the flow ratio be high or should it be low for the critical movement? So obviously it should be high, and relatively the highest one would show us the critical movement or the critical lane. All right, so next is the highway capacity manual. This is the quick estimation method by HCM. So QEM by HCM basically provides a useful description of the operational performance by answering the following questions. Now, you have to understand here that there are a lot of other methods as well, and there is a long history of applying this critical movement analysis. And over the period of time, a lot of updates have been made. Initially, the procedures were relatively more detailed with the passage of time, with the advent of computer technology and in the advancement of the methodology procedures, the use of computers became more useful in this case because the hand calculations were more difficult. Anyway, in the last version of the highway capacity manual, this procedure of quick estimation method is discussed here because it relatively is more quicker method. It is more easier to apply as opposed to more detailed methods. But again, this critical movement analysis methods, as we will discuss here, the main idea is to quickly see what the situation of the intersection is in terms of critical movement. So this quick estimation method by HCM, it basically answers, or it is helpful in answering these questions. What are those questions? First is that what are the critical movements at the intersection? Okay, so that is the first question. Then is the
Next question is that is the intersection operating below, near, at, or above the capacity? So that is again an important question. And then the third one is that where are capacity improvements needed? So that basically tells us that overall how the intersection is operating, which legs, which movements are more critical, and that all obviously tells us that okay, these are the locations where more improvement is needed in terms of the capacity. Okay, let's move on. All right, so over here we have this step number one. And before I start with this step, let me check if you have any questions up till now. Please raise your hand if you have any questions. I will open the mic. Okay. So apparently there are no questions. So let me move on with the first step. So in the first step, what we do is according to this quick estimation method. And again, if you see that the term of this method, quick estimation method, it implies that it is telling us we want to see using this method quickly and without going in unnecessary detail to begin with. Obviously, it does not mean that more detailed methods are not needed. Obviously, they are needed, but for quick evaluation, this method is very useful. So the first step of this method is that what we want to do is we want to identify the movements to be served and assign the hourly traffic volumes per lane. So that is very important in the first step. And then next is that this is the only site-specific data that must be provided. The hourly traffic volumes are usually adjusted to represent the peak 15-minute period. Okay, so this is important here that what we want to see is that the hourly traffic volumes per lane need to be noted down from the field. And this is extremely important data and most likely, obviously other details are also obtained, but the most critical one is this one in terms of obtaining the data from the site. And the hourly volumes are really adjusted to represent the peak 15-minute period. Again, the traffic volumes, the hourly volumes, what are the units, why we use that term of hourly volume. Again, all those things have been covered in your previous courses, previous course in particular as well, and obviously this course as well before the contents. But again, if anybody has any relevant question, you can discuss that. The number of lanes must be known to compute the hourly volumes per lane. That is quite obvious. If, for example, if I tell you that for a certain direction of traffic, the total volume, hourly volume is, let's say, 1,500 vehicles. And I tell you that, okay, determine the volume per lane. Your first question to me should be that what are the number of lanes in that direction? So that is how you can assign that. But again, that information with the example which I just quoted would assume that the volume was uniformly distributed. But what we want in this case is to have the separate volume per lane observed from the field. Don't just observe the whole volume and then just divide it by the number of lanes. Obviously, it will give us a more crude assessment of the overall intersection. We may be able to decide or see that overall which leg is more critical or not. But in terms of the relative movement from lane point of view, it is important that the number of lanes are also known and we have the corresponding data. So the first step is from here you can see from this figure that we need to have all the data for different movements. So not only just movements, but also the corresponding volume data should be noted down in the first. All right. Step number 2. So in this step,
we want to range the movements into the desired signal phasing plan. The phasing plan is based on the treatment of each left turn, that is whether it is protected or permitted or etc. So in Pakistani conditions, in those countries conditions where the driving is done on the left side of the road, or in other words, you can say the driver's steering wheel is on the right side, then this movement will be right turn movement. In those British colonies and those countries where British were there, uh, typically the direction of traffic is opposite to what the American and some other countries have. So the protected and permitted phasing is also important. So what we are saying in the first bullet is that we want to arrange the movements into the desired signal phasing plan. So in this context, in the second step, we need to have a clear understanding of what signal phases are, what signal phasing is. And I have to say that in some previous lectures which I delivered, I've seen that some students struggle with this concept of signal phasing. These things have been covered previously, but again, I want everybody to please go ahead and make sure that you have a better understanding of signal phasing because that is very, very important. So signal phasing, what we want to do is first thing what we did was to obtain all the volumes with respect to the movements. The movements were critical, what those movements are, what number of lanes are, what the total volumes are. The next is that to arrange the movements into the desired signal phasing plan and what the signal phasing plan is. For example, in this figure over here, you can see the signal phasing plan is suggesting that in number one over here, if you see the mouse cursor, then you can see here that the according to this configuration, the this traffic over here is moving towards east. So this is eastbound left, and this is westbound left. So these two movements are given a protected phase. They are running at in the beginning. Once these have finished, then this phase is starting. Okay, so this is just an example. Obviously, those phasing plan can be different for different intersections. But just to illustrate you the background of that or refresh you the concept of that. So over here, once this phase is running, then these movements are running. Then at, you will keep on going and you will arrange all those phases up to n. So whatever the total number of phases are from 1 to n, whether there are 4 phases, 5 phases, 6 phases, whatever those numbers are or more, then you will arrange those movements according to the phasing plan. And you will also mention that whether the phasing is protected or permitted or combination of these two. So what protected and permitted phasing is, you should also be familiar to that. So I will quickly ask from you guys, any first three students who will raise your hand, you can answer. I will not be specific right now, but you can answer that. Anybody who will tell me what is permitted phasing, please raise your hand. And obviously your responses are being observed and noted down, so that will also be contributed towards your evaluation. So that is not just for nothing. Obviously your grades and evaluation will be affected because of that. Ji, कौन बताएगा? Otherwise I will randomly ask myself. All right. पता नहीं आप शायद आप लोगों को आवाज I hope आ रही है clear. All right. So randomly roll number 9. कौन है जी? Roll number 9, your mic is not available. Just text me the response. Okay. Roll number 6. आपका मैं mic unmute करूं. And please respond that what is
permitted phase. Okay, Ji, what I just said was that I have given you permission to unmute your mics yourself. So I'm asking this question again that what is permitted phasing in traffic engineering? So first three responses will get credit. जी कोई भी नहीं है? If you can't unmute your mic, please raise your hand. Permitted phasing वो है, ये कौन था जी? तला था ये 05 तला. Okay. सर Anybody else? जी. सर परमिटिंग फेजिंग में हम किसी एक लेन को या किसी एक सिग्नल को या किसी एक टर्न को परमिट कर देते हैं. ठीक है. Okay. Anybody else? जी आप लोगों ने हाथ रेज किए हुए. You can unmute your mic and answer. Waleed और ये कौन है? मोहम्मद मुनीर जी. परमिटेड फेजिंग जिसमें जो लेफ्ट टर्न ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी अलाउड हो. लेफ्ट टर्न ट्रैफिक मूवमेंट भी अलाउड हो. चले ठीक है किसी हद तक, लेकिन दिस इज नॉट एन एक्यूरेट आंसर. हाँ जी, और कोई वलीद बोलना चाह रहे हैं? सर परमिटिंग फेजिंग होती है जिसमें हम टर्निंग को अलाउ करते हैं, परमिट करते हैं. इसमें लेफ्ट टर्न पर आ जाती है हमारे पास परमिटिंग फेजिंग, जिसमें थ्रू मूवमेंट होती है, लेफ्ट टर्न मूवमेंट भी होती है हमारे पास. जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट है वो कौन सी है? राइट टर्निंग या लेफ्ट टर्निंग? राइट टर्निंग. राइट टर्निंग, ठीक है. तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आपके आंसर का फिर इसका मतलब ये जवाब है, इसको मैं बाद में ज़रा ब्रीफ करूंगा, लेकिन आपके जो रिस्पॉन्स हैं वो सजेस्ट करें कि इन दैट वी आर अलाउइंग द राइट टर्निंग मूवमेंट टू आल्सो पास. Okay, what is the difference between the permitted phase and what is the difference between permitted phase and protected phase? Okay, अब ये आप लोगों ने randomly नहीं इस पे जवाब देना. I will ask myself कि ये लोग मौजूद भी हैं कि नहीं. हाँ जी, रोल नंबर 6 किधर है? Please respond. तारिक आप मौजूद हैं क्लास में? ओके, सईद आप मौजूद हैं? सईद भी नहीं है आज? जी सर. अच्छा सईद आप हैं. अच्छा सईद मुझे बताइए रोल नंबर 6 का नाम क्या था? सर उमर नहीं. अच्छा उमर, आपको आवाज अगर नहीं आ रही है, आप प्लीज रिस्पॉन्ड करें प्लीज क्विकली. ठीक है जी, ये किसी और को बिठा के तो नहीं चला गया? ऑलराइट, वो तो खैर चेक हो जाएगा. अच्छा ये मुझे बताएं नेक्स्ट रोल नंबर, ये किधर लिस्ट में से मैं देख रहा हूँ जी. हसन आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड परमिटेड फेजिंग?
Roll number 35. Okay, जी, what I will do is, I'm not getting responses. ये जो students respond नहीं करेंगे, they are not present in today's class. I will quickly ask this question one by one. सबसे पहले ये मेरे पास हारून, आप बताएं. यस सर, बिल्कुल. चलिए, आप तो हैं तो सही, जवाब भी बताएं. जवाब ये है इसका कि जो प्रोटेक्टेड सिग्नल जो होते हैं सर, उसमें हम एक ही लग से आने वाली जो ट्रैफिक होती है, एक ही फेज को हम अलाउ करते हैं, एक फेज को सर. और जो परमिटेड सिग्नल जो होती है ट्रैफिक, परमिटेड में हम ये करते हैं कि जो एक ट्रैफिक एक जो फेज गुजर रहा है उसके साथ जो फेज, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड फेज है, अब जब हम थ्रू ट्रैफिक चला रहे होते हैं, जो मैंने अपने सर्वे के दौरान जो हमने ऑब्जर्व किया है, तो लेफ्ट हैंड ट्रैफिक मोस्टली है जो अलाउड होती है, और वो इस शर्त पे अलाउ होती है कि उसमें एक्सेप्टेबल गैप और एक्सेप्टेंस हो दोनों तरफ से कि अगर वो इजीली पास कर सकती हैं वो व्हीकल्स, और अगर कोई कंफ्लिक्टिंग आगे पॉइंट नहीं आ रहा तो अगर अलाउड है तो उसे परमिटेड बोलेंगे, और अदरवाइज प्रोटेक्टेड वो हैं जो जिससे सिर्फ एक ही मूवमेंट और एक ही सिग्नल अलाउड. चले मैं अब थोड़ा आगे चलता हूँ. ठीक है अरुण, थैंक यू. नेक्स्ट जी हसन, आप रिस्पॉन्ड करें, अगर पहले आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा मैं आपसे पूछूं. रोल नंबर 35. ओके जी, रोल नंबर 35 इज एब्सेंट टुडे. नेक्स्ट इज फैसल शहजाद 28. यस सर. जी फैसल, आप कुछ बताना चाहेंगे? जल्दी से बताना है मुझे बस ये बता दें प्रोटेक्टेड फेज क्या होता है. सर प्रोटेक्टेड में मतलब कि हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, और जो परमिटेड होता है उसे हम अलाउ कर रहे होते हैं. फिर वो सर जो भी टर्न हो, वो लेफ्ट हो या राइट हो. चलें, गुड ट्राई. कुछ चीजें इसमें एड्रेस करने वाली वो मैं बाद में सबको इकट्ठी बता दूंगा, बट गुड आंसर. ओके, नेक्स्ट इज सारिम, आप बताएं 33. यस सर. जी, जो प्रोटेक्टेड सिग्नल होता है उसमें लेफ्ट जो हमारी टर्निंग होती है ना, उसके लिए ग्रीन है. पाकिस्तान में राइट टर्न के लिए ग्रीन है, वो प्रोवाइड करती है. चलें ठीक है, बस यहाँ तक रखें. ठीक है, राइट. नेक्स्ट इज रोल नंबर 8. आपने कोई बताया था आंसर 8 में? यस पहले सर, बताया मैंने था. बता ठीक दिया है था. ठीक है, आपका हो गया. ओके, रोल नंबर 8 भी हो गया है, रोल नंबर 5 भी हो गया है, और रोल नंबर 34 भी हो गया है. सही है, ठीक है. और नेक्स्ट इज रोल नंबर 44. यस सर. हाँ जी, बताएं जी. व्हाट इज प्रोटेक्टेड फेज? प्रोटेक्टेड फेज में जो ग्रीन सिग्नल है वो हम लेफ्ट टर्निंग व्हीकल्स को प्रोवाइड करते हैं, और जो ये स्टॉप करती है मतलब दो साइड से ट्रैफिक को जो है वो स्टॉप करी होती है, और परमिटेड में हम अलाउ करते हैं ट्रैफिक को लेफ्ट टर्न के लिए. चलें इसी हद तक. ऑलराइट, नेक्स्ट इज आपके बाद है जी रोल नंबर 1. तो फॉर एग्जांपल जैसे एक सिग्नलाइज्ड पेडिस्ट्रियन सिग्नल है, वो जो है वो प्रोटेक्टेड है, और अनसिग्नलाइज्ड है लेकिन अलाउएबल है. जैसे जीटी रोड्स पे सारे अनसिग्नलाइज्ड है लेकिन अलाउएबल पैसेंजर पासिंग है, वो परमिटेड है. नहीं, एक मिनट है. अनसिग्नलाइज्ड परमिटेड हो जाएगा? परमिटेड तो है लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं ना है. आपने कहा है डिफरेंस बताना. तो जो सिग्नलाइज्ड पेडिस्ट्रियन सिग्नल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और जो अनसिग्नलाइज्ड होते हैं वो परमिटेड होते हैं. अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे ये बताएं कि जो अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शंस हैं वो क्या परमिटेड हो सकते हैं? वो तो है ही अनसिग्नलाइज्ड. पेडिस्ट्रियन के लिहाज से बता रही, ट्रैफिक के लिहाज से नहीं बता रही. मतलब जो पेडिस्ट्रियन सिग्नल्स नहीं होते जहाँ पे.
पेडिस्ट्रियन सिग्नल नहीं होते जहाँ पे? देखिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रोटेक्टेड और परमिटेड की बात हो रही है, तो अभी आपने एक जगह पे कहा जी कि अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शंस परमिटेड होते हैं, बेशक वो पेडिस्ट्रियंस के लिहाज से हो, लेकिन आपके आंसर ये कह रहे थे कि वो वहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं होता, तो वो परमिटेड कैसे हो सकता है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन। तो सर वहाँ से पैसेंजर तो पास कर ही रहे होते हैं ना, तो परमिटेड होता है तो पास कर देते हैं। नहीं, आपका मतलब है वहाँ सिग्नल लगे होते हैं कि नहीं लगे होते? मैं आपसे ये क्लियर नहीं लगे होते। नहीं लगे होते, तो नहीं लगे होते तो वहाँ पे तो प्रोटेक्टेड और परमिटेड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना, ठीक है ना? ये आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, इसको चेक करें, ठीक है? चलो मैं अब टाइम थोड़ा तो आगे चल रहा हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑलराइट, कौन रह गया जी इधर से? रोल नंबर 1 हो गया, रोल नंबर ओके, रोल नंबर 4। जी, रोल नंबर 4 आपसे भी सेम क्वेश्चन, मोहम्मद यासिर। ओके, सो मोहम्मद यासिर इज आल्सो एब्सेंट। और नेक्स्ट इज सर आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। ये अच्छा यासिर आप बोल पड़े, ठीक है। हाँ जी बताएं, जल्दी से बताएं कि परमिटेड फेज, ये जो भी रोल नंबर 1 ने आंसर दिया था, इसका आंसर में बताएं कि क्या मसला था। ये जो मैंने कमेंट किए, ठीक है सर वो अनसिग्नलाइज्ड की बात कर रही थी, लेकिन हम सिग्नलाइज्ड की बात कर रहे हैं, और प्रोटेक्टेड में जो हम लेफ्ट वे ट्रैफिक जा रही है उसके लिए जरूरत, और जो परमिटेड होता है हम उसको अलाउ करें ट्रैफिक को, वो जो लेफ्ट वाले सिग्नल से वहां से पास करती है। चलें, कुछ ना कुछ आपने बता दिया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज रोल नंबर 6 तो एब्सेंट है आज। नेक्स्ट इज रोल नंबर 10 उजैर, मोहम्मद उजैर। यस सर। जी जी बताएं मुझे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये सिग्नल फेजिंग होती क्या बेसिकली? सर जो सिग्नल फेजिंग होती है कि अगर 4 लाइन इंटरसेक्शन है ना, तो हमें मतलब सिग्नल को ऑपरेट कैसे करना है, मतलब विदाउट एनी कोलिजन्स, मतलब विदाउट एनी कोलिजन एट द इंटरसेक्शन हमने कैसे सिग्नल को रन करना। उसमें ये होता है कि एक टाइम पे एक लेग को हम अलाउ करते हैं कि उसके व्हीकल्स पास करें, और फिर आफ्टर सम टाइम सिग्नल बंद कर देते हैं और दूसरी लेग को अलाउ करते हैं कि उसकी ट्रैफिक पास करे। ये जरूरी है कि एक वक्त में एक लेग को ही अलाउ करें? शायद 2 लेग से भी हो सकती है। अच्छा, 2 लेग से भी हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। चलें इसको फिर मज़ीद डिस्कस बाद में करेंगे। चलें ओके जी। नेक्स्ट इज रोल नंबर 14। यस सर। हाँ जी, रोल नंबर 14 आपसे भी ये क्वेश्चन है कि ये जो सिग्नल फेजिंग होती है, इसमें हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में टिपिकली कितने फेजेस होते हैं? सर फेज तो इस तरह अलाउ किया जाता है ना कि एक वक्त में कितनी मूवमेंट्स को अलाउ करने पे जिनका कॉन्फ्लिक्ट बीच में आता है। चले मैं आप क्वेश्चन को जरा रिफाइन कर लेता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त, स्टेप नंबर 2। जी सर। हाँ जी, इससे मुझे ये बताएं, ये जो आखिरी बॉक्स बना हुआ है जिसमें 2 एरोज नजर आ रहे हैं, ये कौन सा फेज शो कर रहा है? इस फेज में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं? सर जो एन लिखा हुआ है वो क्या जी जी, एन वाला, जी जी। सर ये इस फेज में हमारी थ्रू ट्रैफिक जो है अपोजिंग थ्रू ट्रैफिक को अलाउ होनी है। किस डायरेक्शन में? सर एक ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, और ईस्टर्न है और वेस्टवर्ड है। ठीक हो गया। चलें ठीक है जी, आगे चलें हम। नेक्स्ट है हमारे पास रोल नंबर 19 जी। हाँ जी, आप बताएं जो भी रोल नंबर 14 ने जो आंसर दिया था वो ठीक था कि उसमें कोई गलती थी?
जी रोल नंबर 19 आपसे क्वेश्चन है कि पिछला जो आंसर था क्या वो ठीक था कि गलत था? All right, I'm giving you 2-3 more seconds to respond. Okay, no answer from you. Next is roll number 18. जी 18 आप बताएं सुलेमान। यस सर। आपसे सेम क्वेश्चन है कि जो रोल नंबर 14 ने आंसर दिया था क्या वो ठीक था या उसमें कुछ गलत था? जी सर, उसमें कुछ करेक्शन होने वाली है। ये कि ये ईस्ट और वेस्ट बाउंड डायरेक्शन नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ बाउंड डायरेक्शन है। और ये एक डायरेक्शन और उसके ऑपोजिट ट्रैफिक बस ठीक है, चलें ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये आप भी नोट कर लें, रोल नंबर 14 आपको कम से कम जो है ना सारे स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि आपकी कम से कम डायरेक्शंस तो ठीक होने चाहिए। ठीक है, इसका ख्याल रखा करें। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल नंबर, एक सेकंड ठहरें जरा, ये मैं नोट कर लूँ ये कौन सा रोल नंबर है। 22। ओके, रोल नंबर 16। सर मेरा क्वेश्चन है। यस सर। ये कौन है? सर हारून। हारून अभी बाद में, पहले मैं ये जरा सबसे स्कैन कर लूँ फिर उसके बाद। ओके सर। हाँ जी, ऑलराइट जी। जी ये कौन है रोल नंबर 16? यस सर, रोल नंबर 16। हाँ जी जी दानियाल आप बताएं कि अगर ये जो फेजिंग है इसमें जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है उसमें प्रोटेक्टेड फेज कौन सी डायरेक्शन होगा? सर प्रोटेक्टेड फेज यही होगा कि एक टाइम पे हमारी एक ही लेग को ट्रैफिक मतलब पास करना अलाउ होगा, तो वो प्रोटेक्टेड होगा वो। यस सर, कि अगर सिर्फ एक ही अगर हम दें, यानी कि एक ही लेग को हम थ्रू ट्रैफिक भी दें, उसको राइट टर्न भी ले सके और लेफ्ट टर्न भी ले सके। अच्छा, इस केस के अलावा चलें ठीक है, वो समझ आ गई। इस केस के अलावा कोई प्रोटेक्टेड सिनेरियो हो सकता है? यस सर, इससे ना हो सकता है कि लेग अगर हम एक ट्रैफिक को तो हम अलाउ कर ही रहे हैं कि उसकी तीनों मूवमेंट में वो मतलब फ्रीली मूव कर सके, और जो दूसरी ट्रैफिक है वो लेफ्ट साइड पे अगर मूव कर सके, जैसे सर आइलैंड बना देते हैं साइड पे, ताकि वो लेफ्ट साइड पे ऑक्सिलरी लेन उसकी सर बना देते हैं ताकि वो लेफ्ट साइड पे इसको हम प्रोटेक्टेड कहेंगे। यस सर। ओके, चलें जी आगे चलें हम। ठीक है था दानियल, थैंक यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास फैसल, आपने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है। और उसके बाद है जी रोल नंबर 10 हो गया उज़ैर आपका? हाँ उज़ैर का भी हो गया, ठीक है। उसके बाद है जी रोल नंबर 17। यस सर। जी एक तो अपना नाम आप लिखा करें, ठीक है? जी सर। हाँ जी बताएं क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन है, क्या हमारे पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड फेजिंग की एग्जांपल्स तो बताएं। सर क्या होगा प्रोटेक्टिव फेज में? एग्जांपल बताएं पाकिस्तान में। जी प्रोटेक्टेड फेज होता है क्या, चलिए ये बता दें। तो प्रोटेक्टिव फेज वो है कि जिसमें एक जो लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड टर्निंग प्रोवाइड की जाए और जो ऑन थ्रू ट्रैफिक चल रही है उसको स्ट्रिक्ट किया जाए। नहीं, हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक तो वैसे ही चलती रहती है फ्रीली ज्यादातर केसेस में, तो फिर हमें उसको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है? सर उस केस में करते हैं कि जहाँ लेफ्ट हैंड जो मूवमेंट है वो काफी एक्सेसिव ज्यादा हो। किस केस में करते हैं जहाँ पे मूवमेंट वो ज्यादा हो, काफी एक्सेसिव टर्न मूवमेंट ज्यादा हो जहाँ पे? जी सर। चलें इसको मजीद आपसे डिस्कस और मैं करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट रोल नंबर है जी रोल नंबर 20।
जी, रोल नंबर 20, मुझे आप ये बताएं कि सेम क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी प्रोट्रैक्टेड फेजिंग है उसकी कोई एग्जांपल दें मुझे। तो सिर्फ पाकिस्तान के अनुसार इंडिया के हर टाइम एक ही फेस सर ग्रीन होता है और बाकी हमारे रेड होते हैं। इस में थ्रो मूवमेंट होती है, लेफ्ट और राइट दोनों होती है इसमें। एक ही वक्त में नहीं, एक ही वक्त में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? सर उसमें थ्रो मूवमेंट होती है, राइट टर्न होती है, मतलब यू टर्न। अच्छा, राइट टर्न, यू टर्न। और जब वो वाली मूवमेंट हो रही होती है तो कोई और मूवमेंट नहीं हो रही होती? और मूवमेंट सिर्फ लेफ्ट टर्न हो रही होती है जो कि परमिटेड होती है पाकिस्तान में। अच्छा, चलें। राइट, नेक्स्ट रोल नंबर है जी हमारे पास। ओके, ये रोल नंबर 9 जी, आप बताएं। अच्छा, रोल नंबर 9 का तो जी माइक ही नो माइक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रोल नंबर 22 अयाज। जी अयाज, आप अवेलेबल हैं? अगर नहीं होंगे तो यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। रोल नंबर 22। Okay, I'm not getting any response from roll number 22 as well. 22 भी आज absent है. All right, next is roll number 45. सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा असल आपसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप ये बताएं कि परमिटेड फेजिंग की कोई एग्जांपल बताएं कि वो कहाँ पे, मतलब चले मुझे लोकेशन ना बताएं, मुझे वैसे बता दें कि परमिटेड फेजिंग कैसे दिया जाता है पाकिस्तान? सर परमिटेड फेजिंग ऐसे दिया जाता है कि आप 3 फेज में रेड हो और एक फेज में वो कहते हैं अलाउ किया जाए मूवमेंट को, और ऑन द सेम लेग आप लेफ्ट टर्निंग भी अलाउ करें। अच्छा, आप क्या दो ऑपोजिट डायरेक्शंस को साइमल्टेनियसली परमिटेड फेजिंग दी जा सकती है? सर हम दे सकते हैं लेकिन इसमें टर्निंग नहीं होगी, सिर्फ सेम फ्लो में होनी चाहिए। टर्निंग नहीं होगी? यस सर। ऑलराइट, ओके जी, नेक्स्ट इज रोल नंबर 43। जी सर, 43। हाँ जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन है मेरा कि क्या साइमल्टेनियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में आप प्रोटेक्टेड फेजिंग दे सकते हैं, परमिटेड फेजिंग? जी सर, दे सकते हैं। दे सकते हैं? अभी अरसल तो कह रहा था नहीं दे सकते। अरसल वैसे कहता है कि थ्रू दे सकते हैं, टर्निंग ट्रैफिक को नहीं दे सकते, तो क्या टर्निंग को दे सकते हैं? सर अगर आइलैंड है तो हम टर्निंग भी दे सकते हैं ना। वैसे राइट साइड पे नहीं, एक मिनट है ना, राइट साइड पे तो आइलैंड ही ना आप देते पाकिस्तान में जाते हैं ना सर, टर्निंग नहीं फिर दे सकते। लेफ्ट की हो सकती है, राइट पे टर्निंग नहीं हो सकती अगर हम अपोजिट में थ्रू में ट्रैफिक चला दें तो फिर वो लेफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली हम परमिट नहीं कर सकते ऑपोजिट डायरेक्शन की टर्निंग ट्रैफिक को जो राइट साइड बची कर सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अच्छा, ऑलराइट, वेरी क्विकली हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं। इसमें मैं आपसे ये आज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करूंगा, देन विल कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। जी, रोल नंबर 38 मोहम्मद अली। यस सर। जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कन्फ्लिक्टिंग टर्निंग मूवमेंट है जी सर, उसको परमिटेड फेजिंग दी जा सकती है? सर अगर हम लोग दो अपोजिट लेन को अलाउ करें, परमिट करें, तो उनकी मूवमेंट या तो थ्रू हो सकती है या हम उनको लेफ्ट टर्न दे सकते हैं, राइट टर्न नहीं दे सकते। राइट टर्न देंगे तो सर वहाँ वो कंफ्लिक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अगर एक लेन थ्रू मूव कर रही है और दूसरी लेन से राइट टर्न को लेगा तो वहाँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो लेफ्ट टर्न तो हमारे पाकिस्तान में वैसे ही अलाउ है, तो हम लोग परमिटेड के लिए अपोजिट लेन में से थ्रू को अलाउ कर सकते हैं, राइट को नहीं कर सकते? नहीं सर, राइट को करना पड़ेगा तो फिर हमें ऑपोजिट लेन को परमिट नहीं करना पड़ेगा। एट अ टाइम एक लेन की राइट टर्न अलाउ की जा सकती है। नहीं, जो एक टाइम की राइट टर्न अलाउ का आप कह रहे हैं उसमें आपका मतलब ये कि फिर उसको प्रोटेक्टेड मूवमेंट देनी पड़ेगी अगर दूसरी तरफ से ट्रैफिक ऑन है?
जी सर, उसको फिर हमें प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। ओके सर। All right, next is roll number 41, Usama. अस्सलाम सर। जी वालेकुम जी। यस सर। जी उसामा, सेम क्वेश्चन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हम प्रोटेक्टेड परमिटेड फेजिंग दे सकते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग टर्निंग ट्रैफिक के पास में? सर हम परमिटेड दे सकते हैं अगर सेंटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, अगर दोनों तरफ से लेफ्ट टर्न हो तो हम परमिटेड दे सकते हैं दोनों तरफ से थ्रू ट्रैफिक की। नहीं, अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो? यस सर। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। नहीं सर, कॉन्फ्लिक्ट अगर ऐसे अगर मैं देखा जाए तो मैं जिस तरह हमने ट्रैफिक सर्वे किया था गुलाबदेवी इंटरसेक्शन में, तो उसमें सेंटर में मेट्रो जा रही थी, उसमें तकरीबन दोनों तरफ से थ्रू ट्रैफिक चल रही थी उसमें, तो मेरे एग्जांपल आ रही है मेरे में। तो उसमें दोनों थ्रू ट्रैफिक थी, उसमें सेंटर में मेट्रो गुजर रही थी, उसमें मैंने देखा कि दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही थी। चले इसको भी यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट आपसे, ठीक है, थैंक यू सम। नेक्स्ट है जी अब्दुल करीम, रोल नंबर 42। जी गुलाम वो एक मिनट है। नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन बाद में। नहीं क्वेश्चन नहीं सर, कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं अभी भी, उनके कोई एक स्टूडेंट वेटिंग पे, ज्यादा नहीं है, एक स्टूडेंट वेटिंग पे। ये वो स्टूडेंट है जो एब्सेंट था और वो अब ज्वाइन कर रहा है, तो वो मेरा काम है उसको एडमिट करना या ना करना, आप फिक्र ना करें उसकी, ठीक है? हाँ जी, ऑलराइट। रोल नंबर 42। 42 यस सर। हाँ जी। 42 आप ये बताओ कि साइकिल लेंथ क्या होती है? साइकिल लेंथ सर वो ग्रीन टाइम होता है जिसमें हम सारे लेग्स को यानी उनको अलाउ करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाए एक टर्म तो उसे जो टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में, तो उसे साइकिल लेंथ कहते हैं। नहीं, उसमें सिर्फ ग्रीन के टाइम्स को काउंट करते हैं उसमें? नहीं सर ग्रीन नहीं होता, वैसे एक पूरे कंप्लीट करने के लिए, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है ना, तो उसे हम साइकिल लेंथ कहते हैं। अच्छा, मतलब सारी मूवमेंट्स को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे साइकिल लेंथ। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल नंबर, ओके, ये मेरे पास एक दो आए हुए हैं, इसको मैं देखता हूँ कौन है। एक सेकंड आप होल्ड पे रहें। मैं ये एक स्टूडेंट है ये जो किसी और के रोल नंबर से एंटर हुआ है। आई वाज जस्ट जी सर, मोहम्मद अयाज। हाँ जी मोहम्मद अयाज, आप किधर थे? क्लास में नहीं थे आप? सर ये वो लैपटॉप में वो कर रहा था, लैपटॉप पे माइक का इश्यू आता है तो इस वजह से मोबाइल पे अब हुआ हूँ। अच्छा चले, आपसे मैं बाद में पूछता हूँ। आपके नाम से एक और रोल नंबर भी ऐड हुआ था, उसको भी मैंने रिमूव किया क्लास में से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रोल नंबर 37। हो गया आपका वलीद? यस सर। 37 आपसे नहीं हुआ अभी क्वेश्चन, ऐसे ही? यस सर। ओके, हाँ जी। अच्छा प्लीज ये बताएं कि आपके ये जो होता है प्रोटेक्टेड फेज, यस सर, ये आपका अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शंस में भी यूज हो सकता है? नो सर। रीजन? सर जो परमिटिंग फेज होता है तो हम वो बना के आइलैंड बना के अलाउ करते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड में हमारे पास जो होता है वो सिग्नल मस्ट होता है। प्रोटेक्टेड में हमारे पास सिग्नल मस्ट होता है, परमिटेड में हमारे पास वही नहीं कि सिग्नल हो, उसमें हम आइलैंड यूज कर सकते हैं, ऐसे ही? चलिए, मेरे ख्याल में मुझे ना आप लोगों को सबको जो है ना किसी इंटरसेक्शन पे बिठा के एक लेक्चर देना पड़ेगा, जो हालात है ना आपके सबके, मेजॉरिटी के, नॉट एवरीबॉडी। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल नंबर कौन सा था जी? रोल नंबर 9 का हो गया आपका? हाँ जी 9 का तो है ही नहीं है, ठीक है, माइक नहीं है। रोल नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 43 का भी हो गया, 42, 41, 32, रोल नंबर 32।
यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो परमिटेड लेफ्ट जो है ना फेजिंग सर, उसमें जो लेफ्ट टर्न होता है उसको हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। नहीं, पहले एक मिनट ठहरे। मेरा क्वेश्चन फिर आपसे ये है, अभी जो वलीद भी कह रहा था और भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि परमिटेड फेजिंग के लिए हमें सिग्नल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए हम आइलैंड बना दें तो वो हमारा पर्पस फुलफिल कर देता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सर परमिटेड में लेफ्ट टर्न अलाउ होता है, तो सर वो अगर हम आइलैंड नहीं, वो सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ ना, आइलैंड तो आपने बना दिया, लेकिन सिग्नल का वो ठीक कह रहे हैं ना कि सिग्नल की जरूरत नहीं है उसमें। जी सर, तो आइलैंड बनाओ तो ऑब्वियस ऐसा है कि वो लेफ्ट टर्न जो है ना वो आप तो सिग्नल की जरूरत, यानी कि सिग्नल वहां पे लगा ही नहीं होना चाहिए, सिग्नल माउंट ना हो तो आइलैंड दिया हो तो इट मींस कि वो परमिटेड फेजिंग है वहां पे, ऐसे ही है ना? सर ऐसे ही है सर, अब सिनेरियो तो ऐसे ही देखे जीटी रोड पे तो ऐसे ही है, वो जो चलें सबसे टर्न लेते हैं। नहीं बस ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन पे बाद में जाएंगे। ठीक है, आपका भी आंसर आ गया। राइट, ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास रोल नंबर, आपकी इसके बाद कौन सी क्लास है 10 बजे? सर एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट की 10 बजे? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे 1 बाय 1 वो रोल नंबर्स, अपने रोल नंबर बताएं जिनसे भी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, जल्दी से बताएं एक एक करके। 21 सर, 29 सर, 21, 29, 28, 38, 28 28 के बाद बताएं ये जो भी फीमेल स्टूडेंट बोली। सर 23, 23, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट। ओके, सब हो गए मेरे ख्याल में। चलें जी, और टाइम भी हो गया। सर 19 रोल नंबर 2015 सेशन। हाँ जी, आप किधर थे? 19 सर वो मेरा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था, मैं 9 बजे आया था तो फिर 9:30 से 9:35 तक नेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया था, तो मैंने दोबारा ज्वाइन। चलें, ठीक है। और बताएं रोल नंबर कौन सा रह गया, जल्दी बताएं। 30, ओके। 08 नहीं होगी, आप लोगों की होगी। मैंने कहा जिससे मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा वो बताए। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। चलें जी, कोई रह तो नहीं गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास का टाइम हो गया, फिर इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।